Chinmaya Satgurave Namaha. Vivekachudamani. Sloka number 385. Dehendriya pranamanohamadibhihi swajnana kliptyairakhilairupadhibhihi vimuktamatmanamakhanda-rupam purnam महाकाशम इव अवलोकयेत्. स्व अज्ञान क्लिप्तैः देह इंद्रिय प्राण मनः अहम आदिभिः अखिलैः उपाधिभिः विमुक्तम आत्मानं अखंड रूपम पूर्णम महाकाशम इव avalokayet. This is an instruction for a student from his or her acharya. Swa ajnana kliptaihi. It is like established with anyone's own ignorance. अपने अज्ञान की द्वारा प्रतिष्ठित देह इंद्रिय प्राण मनः अहम आदिभिः अखिलैः उपाधिः. Akhilaihi upadhi means ananta upadhi. We are having a great number of, enormous number of conditionings, starting from this body, sense organs, prana, vital life forces, mind, ego, so many things. So, but my beloved student, we have covered already 384 slokas, done a lot of sadhanas. You should visualize Atma, or you should know yourself that Atma, and you should do aparoksha anubhuti that Atma or you are vimuktam. You are devoid of all such above mentioned conditioning. So, who you are, how you are, akhanda roopam, you are undivided. Purnam mahakasham iva. You are like the space, there is no gap, no voidness. You are total, absolute, complete. Purnam. You should know yourself like that. You should see your Atma like that. बोल रहा है देह इंद्रिय प्राण मन अहंकार, ये जितना उपाधि, ये सब
आपके अज्ञता से प्रतिष्ठा प्राप्त हुआ, आपके अज्ञता की चांस लेकर, सुजग लेकर ये सब खुद प्रतिष्ठा पा लिया और वंश वृद्धि भी किया। स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा मौका मकान था, बहुत सारे रूम्स था, क्योंकि उस समय की वन ऑफ द फेमस लॉयर बैरिस्टर वाज his father Vishwanath Dutt. But he was a social reformer too. He tried to bring boys from the village side. He used to give them space at his own house for studying. They used to study, and भालापन की, विश्वनाथ दत्त की भालापन की सूजग लेकर they used to stay over there. And when Vishwanath Datta was died, nobody was ready to leave the property because already they mushroomed there with their family, children, and how difficult it was when Ramakrishna Mission captured and tried to transform it as a memory. So, your all upadhis, they are established in you are established in them. It's a mutual understanding, and they have mushroomed a lot. Those you don't know always. Ajasra sankhak upadhi, deha, indriya, prana, mana, ahankar. अजस्र उपाधि, ये आपकी अज्ञता की चांस लेकर प्रतिष्ठा पा लिया। इनके लिए एक आत्मा को बहु लगता है, मैनी, वन आत्मा appears many. और हम लोग एक है, पूरा दुनिया ही, पूरा जगत एक है, सिर्फ उपाधि के कारण लग रहा है हम लोग एक दूसरे से अलग है। इसी उपाधि से ही अगर अपना स्वरूप को हम लोग नहीं ढक के रखता तो हम लोग भी हर पल उपाधि मुक्त अखंड आत्मा को, पूर्णता स्वरूप आत्मा को महाकाश की तरह देख पाते। बोल रहा है देह इंद्रिय प्राण मन अहम आदि भी स्व अज्ञान क्लिप्त ही अखिल ही उपाधि भी, ये जो असंख्य अगुणित न्यूमारेबल अनंत अखिल उपाधि, ये सब अज्ञता से, इग्नोरेंस से आ रहा है। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि कोई भी नाम, कोई भी रूप नित्य नहीं और यूनिक नहीं। मुझे लगा था कि दिवाकर चैतन्य यूनिक है,
जब इंटरनेट में दिया ईमेल आईडी खोलने के लिए, कितना दिवाकर चैतन्य है जगत में. सो नथिंग इज यूनिक. All the names and forms are mithya. अज्ञता से, out of illusion, out of delusion, out of all those things it is coming. देह, इंद्रिय, प्राण. हम लोग नाम लेकर पैदा नहीं हुआ. हाँ, हो सकता है माँ बाप भी चालाक हो गया है. वो लोग बोलते पैदा होने से पहले ही ठीक कर लेते हैं. लड़का होने से ये नाम रखूंगा, लड़की होने से ये नाम रख. लेकिन वो लोग भूल गया है कि नाम होता है गुण के अनुसार. ये हमारे सन्यास जीवन में भी जो नाम देता है गुरु, ये हैपोजेटली नहीं. इनको अच्छा लगा, सुचिस्मिता, सुस्मित, हस्मित, टॉनी, बॉनी, ऐसे प्रेम से जितना लगा टॉनी चैतन्य, बॉनी चैतन्य, ऐसे नहीं होता. गुरु and other swamis, they observe in the brahmachari period as long as they are in Gurukul. In all organization, I'm having another organization's experience there also. I have noticed that they totally observe for a long day and then they keep the name. Likewise, बच्चा पैदा होने के बाद तुरंत उसका नामकरण नहीं होता था. आप रामचंद्र के लिए भी देखिए, भगवान कृष्ण का तो छोड़ दीजिए. तो ये जो नामकरण गुरु करते हैं, उस दिन देखकर, बाद में उसका ग्रह नक्षत्र ये सब देखकर, पंजिका के विधि अनुसार उनका क्या नाम होगा, व्यवहारिक में क्या नाम होगा. तो नाम लेकर हम लोग पैदा नहीं होता. रूप मतलब शरीर, वो भी एक जैसा नहीं था. माँ की गर्भ में जैसे था, अभी ऐसा नहीं. तो कोई भी चीज नित्य नहीं है. ये सारी उपाधि है. हमारे ऊपर आरोप किया हुआ एक अधिष्ठान है, उसके ऊपर हर चीज आरोप कर रहा है. और वही अधिष्ठान आत्मा है. आत्मा ही सत्य है. सारे उपाधि मिथ्या है. यही आत्मा ही मेरा स्वरूप है, जो निर्गुण है, निराकार है, जिनका कोई व्याधि नहीं, वार्धक्य नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, सविशेष नहीं और निर्विशेष है, निरुपाधिक है, सर्वव्यापी है. आत्मा की कोई नाम नहीं रहता, रूप नहीं रहता, वैशिष्ट कुछ भी नहीं. एक 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 है.
लेकिन उपाधि के लिए इसी आत्मा को अनेक लगता है, पृथक पृथक लगता है, अलग अलग लगता है। इन्यूमरेबल उपाधि, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन उपाधि, देह इंद्रिय प्राण मन अहम आदि भी अखिल ही उपाधि भी, ये सारे उपाधि क्यों सृष्टि हुआ है? न शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, अहंकार, ये सब के लिए उपाधि तैयार हुआ। लेकिन सारी उपाधि की एक ही कारण है, इनका नाम है अज्ञान। स्व अज्ञान तृप्त ही, मेरा खुद का अज्ञान से ही ये सारे उपाधि आया। तो हम लोगों का अज्ञान दूर करना पड़ेगा। अज्ञान जाएगा कैसे? इग्नोरेंस से ही सब कुछ हुआ, इग्नोरेंस जाएगा कैसे? हर पल स्वरूप का चिंतन करना पड़ेगा। जो व्यक्ति हर पल स्वरूप का चिंतन करते हैं, गुरु वाक्य के अनुसार, शास्त्र वाक्य के अनुसार, जो व्यक्ति हर पल अपना स्वरूप की चिंतन करते हैं, गुरु कृपा से, गुरु शक्ति की कृपा से, भगवान की कृपा से, शास्त्र की कृपा से उनका अज्ञान चला जाता है और वो व्यक्ति स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। तब विमुक्तमात्मानम अखंड रूपम पूर्णम महाकाशम इव अवलोकयेत्। परमात्मा ही जीवात्मा, लेकिन अज्ञान की कारण से, उपाधि के लिए परमात्मा से खुद को अलग सोच रहा था। जब इग्नोरेंस चला गया, तब ये उपाधि मुक्त आत्मा पूर्ण अखंड रूप में महाकाश की तरह हमारे सामने प्रतीयमान, मूर्तिमान हो जाएंगे। दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ द श्लोका। The body, mind, and intellect are false projections of one's avidya, ignorance. When these limiting adjuncts are transcended, the self is experienced like the great limitless sky. The outer space is unconditioned and all pervading. It allows all other things to remain in it without itself getting conditioned by them. Transcending all things exists space. Similarly, when the body is transcended, I am not limited by any physical object. When the aim and mind and I are also hushed, there can be nothing but pure consciousness.
There is no other example by which we can indicate this great consciousness which is all pervading and eternal. It can only be compared to space. Space itself is not the ultimate reality. It is the nearest illustration which can indicate it, inasmuch as it is the subtlest of all elements. Very often, space is taken as an example for consciousness, since it has the property of sound, it becomes a substance. Things which have properties and are substances are objects, finite, ever changing. Since it is an object, it has a beginning and an end. Atma is not space, but is like space. It is comparable with the subtlest element, space, for the purpose of intellectual understanding. In short, Bhagavan Shankaracharya ji wants us to meditate upon the experience Brahman, the all pervading and eternal. Now, with one drishtanta and another drashtanta in one single sloka, Bhagavan Shankaracharya ji effort with a lot of effort, putting forth a lot of effort trying to make us understand about the Atma and trying to give the nearest example. Ghata kalasha kusula suchi mukhaihi gagana mukhadi shataihi vimuktam ekam bhavati na vividham tathaiva shuddham paramaham vimuktam ekameva. Having dropped hundreds of its limitations, such a pot, a pitcher, a barn, or the eyes of a needle, space is recognized as one and not many. So too, Brahman is indeed one. When denuded of the ego and so on. Ghata kalasha usul suchimukhaihi mukhyaihi upadhi shataihi vimuktam. So, ghat, one shape, kalasha, another shape, jala, pitcher, big size, big water pot, ghata is small water pot. Kalasha is little bigger water pot. Jala is pitcher,
लिटिल बिग, शुचि मुख्यैः उपाधिशतैः विमुक्त। ऐसे हजारों हजारों, सौ सौ उपाधि मुक्त गगनम, आकाश, एकम भवति न विविधम, आकाश एक ही है, न विविधम, भिन्न रूप नहीं, तथा एव, लाइकवाइज, अहम आदि विमुक्तम शुद्धम परम एकम एव। तो पहले दृष्टांत दे दिया, उदाहरण दे दिया, अभी दार्ष्टान्त दे रहा है कि तथा एव, लाइकवाइज, अहम आदि विमुक्तम शुद्धम परम एकम एव। ऐसे ही परमात्मा एक और अद्वितीय। कैसे? ना, अहंकार आदि विमुक्त शुद्ध परमात्मा, अहम आदि विमुक्तम शुद्धम परम, तथा एव। क्यों घट कलश जाला, सारे वाटर पॉट, बहुत सारे पॉट का क्यों उदाहरण दिया? क्योंकि ये घट, कलश, कुसूल, शुचि मुख्य ही गगनम उपाधिशतै विमुक्तम। कुसूल का मतलब है जाला, बड़ा जाला, पिचर। घट, कलश, जाला, सूच, ये सब के अंदर क्या है? देयर इज स्पेस, आकाश विद्यमान। तो घटाकाश, पटाकाश, कलशाकाश, ये सब बोलते हैं। द स्पेस इनसाइड द स्मॉल पॉट, द स्पेस इनसाइड लिटिल बिगर spot, a pot, space inside more bigger pot, means space, space, space. Gaganam, Akasham is a common factor in all the shape. Clear? तो इसी नाम रूप से चिन्हित करके आकाश को घटाकाश, पटाकाश ये सब बोल रहा। लेकिन आकाश तो सर्वव्यापी, इनके बाहर भी तो आकाश है। तो इनको बोलते हैं महाकाश। एक तो है महाकाश और एक है घटाकाश। ठीक है? अंतः पूर्ण वही ही पूर्ण, अंतर में भी वही है, बाहर में भी वही है। उपाधि शतै ही विमुक्तम गगनम एकम भवति न विविधम। बहुत हजारों उपाधि से मुक्त आकाश ऐसे एक ही है, न विविधम, नॉट मेनी, भिन्न नहीं हो गया। पॉट स्पेस, बॉटल स्पेस, रूम स्पेस, बिल्डिंग स्पेस, सब कुछ है। इनके बावजूद भी द स्पेस इज ओनली वन। तथा एव शुद्धम परम अहम आदि विमुक्तम एकमेव। परमात्मा भी एक अखंड है, शुद्धम परम। शुद्ध किसको बोल रहा है? जिनका उपाधि नहीं है, जो उपाधि वर्जित है, वही शुद्ध है, वही हमारा स्वरूप है। परम मतलब, परम मतलब श्रेष्ठ है, जो हमारा आत्मा है। श्रेष्ठ कौन है? ना, आत्मा। जो सत्य स्वरूप है वही परमात्मा। अहम आदि
मतलब देह, मन, बुद्धि, इंद्रिय, ये सारे उपाधि में हमारे अहम बुद्धि है। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा बुद्धि। आत्मा का कोई उपाधि नहीं। अहम आदि विमुक्तम एकम एव स्वरूप, सब एक है। लेकिन हम लोग विभिन्नता क्यों लगता है? क्योंकि नाम रूप प्रवृत्ति उपाधि के लिए। उपाधि मुक्त आत्मा ही एकम एव अद्वितीय। क्लियर? सो a pot, jar, band, or the eyes of a needle are the conditionings for space. Pot space, jar space, band space, and needle's eye space are all parts of the same space and are so called because of their respective conditionings. Space is one with no limiting adjuncts. When the upadhis are all removed, the one space remains all by itself. There can be no differences in it. The apparent differences are all due to its conditionings. Similarly, condition consciousness is one that is no conditionings, which is ever free from concept of perceiver, feeler, thinker. The Atma is free from all incrustations, all congregation, all mixed up. Atma is free from everything else, our body, mind, intellect, or object, emotions, thought. The conditionings around the self, made up of the ego and the body, mind, intellect equipment, are only delusory projections of the mind, for the Supreme is ever immaculate. Thank you very much. Hari Om.